Welcome back. Today is the new video of this playlist. In today's video, we will be discussing about the C language. We will solve and simulate some of the examples that are given in the chapter 7 of the book. And the book is AVR microcontrollers and embedded system in assembly language in C. So chapter 7 has the all the related topics that covers all the C programming related to AVR. We won't be getting into C language and its syntax, but as we are assigned the task of solving the related examples like the data types and time delays in C. So first of all, we will look into the example of data types, and the first example we have is to write an AVRC program that sends value from 00 to FF to port B. Like there should be an unsigned character data type. Okay, that will be the data type of that variable, any variable. In this, the variable is Z. So unsigned character will have 255 bits. So it means that we can send up to 255 number to the port B, as we have defined it as unsigned character. Now coming to Atmos Studio 7.0, I've already prepared the code in the simulator, and now we will see that this unsigned character, we need to we don't need to write, but if you write, it's also okay. If you say unsigned character, then this also means that it will go from 0 to 255, and so this is basically the data type. And as usual, we will direct the port B as an output, so it will give the output as the loop runs inside this. So using that for loop, we will assign different values to Z. To see that, we will see the port B will show the values simultaneously. Now at this stage, as this stage will be executed, all these pins will become high, because we have set it to sorry we have set them to ones, so that it becomes it is directed as high. Now the first Z is equal to 0 will be assigned. So R24, it is assigned. Now going further, it will assign 1, then 2, then 3, 4. You will note here we will see that it is assigning the values from 0 to 255. Going further, we will see that it is assigning the different ports of the different pins of port B as 0 to 255. And basically, this is the first example we have saw. We basically need not to see all the working, but still, to confirm it, we will do it. Now we have reached to 255, it's the maximum, and now it will go back to 0. This is basically the
work of this data type character, an unsigned character basically, that it can only have 0 to 255 number basically. All the next examples are the same. It is assigning values to the pins of some port and the output is shown and the output is shown as it is assigned. So in this unsigned character again, which means that it can only have this mylist array can only have this variable z can only have 255 bits. Okay, and obviously we have used this 10 so that it does not cross its limit of 255. Again we have used unsigned character, and to toggle all the bits of port B 200 times, we've used 200 times so that it does not reach the limit of 255, although we can repeat this toggling up to 255 times, but we will not get into the limit. Sign character. So the sign character will have half the positive and half the negative numbers. So it will go from 134 to minus 134 to plus 134 or 134 to 55. Yes, almost 1 minus 124 or minus 114 to plus 114, something like that. So we will see that unsigned character z will allow this variable z to take positive as well as negative numbers or digits inside it, and this is how this character z is basically used. This must not be unsigned, this should be signed character. Again signed and unsigned int. So we will similarly see that the signed int will take the values from minus 32,768 to plus 32,767. So it is basically 16-bit signed int, and unsigned it is also 16-bit, but it will store values from 0 to 65,535, 65535, or 0000 to FFFFH. So this is the theory of int and signed and unsigned int. Other data types are like other than int, we can have long, both signed and unsigned long. So from the data types section, we have simulated one example. Now we will go into time delay and solve its examples to see how a time delay works and how we simulate it in Atmos Studio 7.0. Welcome back. Today is the new video of this playlist. In today's video, we will be discussing about the C language. We will solve and simulate some of the examples that are given in the chapter 7 of the book, and the book is AVR and AVR microcontrollers and embedded system in assembly language in C. So chapter 7 has all the related topics that covers all the C programming related to AVR. We won't be getting into C language and its syntax, but as we are assigned to the
assigned the task of solving the related examples like the data types and time delays in C. So first of all, we will look into the example of data types, and the first example we have is to write an AVRC program that sends value from 00 to FF to port B. Like there should be an unsigned character data type. Okay, that will be the data type of that variable, any variable. In this, the variable is Z. So unsigned character will have 255 bits. So it means that we can send um, up to 255 number to the port B, as we have defined it as unsigned character. Now coming to Atmos Studio 7.0, I've already prepared the code in the simulator, and now we will see that this unsigned character, if we need to we don't need to write, but if you write, it's also okay. If you say unsigned character, then this also means that it will go from 0 to 255, and so this is basically the data type. And as usual, we will direct the port B as an output, so it will give the output as the loop runs inside this. So using that for loop, we will assign different values to Z. To see that, we will see the port B will show the values simultaneously. Now at this stage, as this stage will be executed, all these pins will become high, because we have set it to sorry we have set them to ones, so that it becomes it is directed as high. Now the first Z is equal to 0 will be assigned. So R24, it is assigned. Now going further, it will assign 1, then 2, then 3, 4. You will note here we will see that it is assigning the values from 0 to 255. Going further, we will see that it is assigning the different ports of the different pins of port B as 0 to 255. And basically, this is the first example we have saw. We basically need not to see all the working, but still to confirm it, we will do it. Now we have reached to 255, it's the maximum, and now it will go back to 0. This is basically the work of this data type character, an unsigned character, basically, that it can only have 0 to 255 number, basically. All the next examples are the same. It is assigning values to the pins of some port and the output is shown as it is assigned. So in this unsigned character again, which means that it can only have this mylist array can only have this variable Z can only have 255 bits. Okay, and obviously we have used this 10 so that it does not
cross its limit of 255. Again, we have used unsigned character, and to toggle all the bits of port B 200 times. We've used 200 times so that it does not reach the limit of 255, although we can repeat this toggling up to 255 times, but we will not get into the limit. Sign character. So the sign character will have half the positive and half the negative numbers. So it will go from 134 to minus 134 to plus 134, or 134 to 55. Yes, almost 1 minus 124 or minus 114 to plus 114, something like that. So we will see that unsigned character z will allow this variable z to take positive as well as negative numbers or digits inside it, and this is how this character z is basically used. This must not be unsigned, this should be signed character. Again, signed and unsigned int. So we will similarly see that the signed int will take the values from minus 32,768 to plus 32,767. So it is basically 16-bit signed int, and unsigned it is also 16-bit, but it will store values from 0 to 65,535, 65535, or 0000 to FFFFH. So this is the theory of int and signed and unsigned int. Other data types are like other than int, we can have long, both signed and unsigned long. So from the data types section, we have simulated one example. Now we will go into time delay and solve its examples to see how time delay works and how we simulate it in Atmos Studio 7.0. सेकेंड एग्जांपल हमारे पास जो इस रिक्वायर्ड टास्क में है, सो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास सी लैंग्वेज की है, जो कि हम अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स देख रहे हैं, और इसमें भी सेकेंड एग्जांपल भी कैरेक्टर की ही है, वो भी अनसाइंड कैरेक्टर की, ठीक है। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड टास्क क्या है कि हम हेक्स वैल्यूज़ जो हैं वो सेंड करेंगे किसी भी पोर्ट को, और आस्की वैल्यूज़ बेसिकली वो पोर्ट में शो करेगा। तो कोड हमारे पास यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और हम देखते हैं कि हमने आस्की वैल्यूज़ दिए हैं 10, यानी 0 से 5 तक, और 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को हमने, इस वेरिएबल z को, जो हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने उसको अनसाइंड कैरेक्टर दिया है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 255 वैल्यूज़ सेव कर सकता है। तो पोर्ट बी को हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं इस आउटपुट, और यहाँ पे वो ये शो करेगा, एक एक को वो असाइन करेगा, सेंड करेगा, और हम उसको पोर्ट बी पे उसका आउटपुट देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि जब 0 पे करेगा तो उसकी आस्की वैल्यू बेसिकली 0 की क्या होती है, हम देखते हैं कि उसकी हेक्स वैल्यू जो है वो 30 होती है।
आस्की जो कैरेक्टर है 0 उसका हम आउटपुट पे 30 हम देखेंगे। इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब जैसे हम नीचे आएंगे इस स्टेप पे तो ये डायरेक्ट कर देगा आउटपुट, और फर्स्ट जो असाइन होगा वो ये होगा, ये। तो 0 यहाँ पे पोर्ट बी पे इसको असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो 1 करेगा, यानी 31, 1 के लिए 31 है, एंड अप टू 5, ये 35 तक शो करेगा। उसके बाद वो जाएगा ABCD। हम देखते हैं कि वो ABCD में जाता है या 10, 11, 12, 13, 33, 34 एंड 35। नाउ ये जंप करेगा 41 पे। तो 41 पे हम हेक्स वैल्यू देखते हैं कि 41 हमारे पास कैरेक्टर में 41 हमारे पास आता है ए, यानी कैपिटल ए हमारे पास 41, देन 42, 43, 44, यानी ये 44 तक ये चलेगा, ये लूप फॉर लूप 43, 44 अगेन ये चला जाएगा शुरू से, ठीक है। फॉर Z0 हो जाएगा और अगेन ये हमें रीसेट करना पड़ेगा, और उसको हम देख सकते हैं कि वो आउटपुट शो कर रहा है। सो ये जस्ट एक टास्क था सिंपल सा, अनसाइंड कैरेक्टर को यूज़ करते हुए हम किसी अरे में उसकी हेक्स वैल्यूज सेव कर दें, और उसकी हम आस्की कैरेक्टर जो है वो आस्की कैरेक्टर सेव कर दें, उसकी हेक्स वैल्यू जो है वो सेंड करते रहें, तो वो हमें शो होगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल देख रहे हैं वो हम साइन कैरेक्टर की देख रहे हैं, और वो 7.4 है, जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसको वैल्यूज़ जो हैं -4 +4 के बीच में हम वैल्यूज़ पोर्ट बी को सेंड करें। यानी यहाँ पे क्योंकि साइन कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे बेसिकली अनसाइन की जगह साइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के -4 से +4 तक जाना चाहिए, जबकि अनसाइन कैरेक्टर जो होता है बेसिकली उसमें माइनस नहीं आता, ठीक है। और आगे जाकर ऑब्वियसली पोर्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम आउटपुट डायरेक्ट कर देते हैं, और क्योंकि ये -4 की और 4 के बीच में हमारे पास 9 बेसिकली डिजिट्स आ गए हैं, तो हम उसको 8 तक रोक रहे हैं। सो लेट अस सी के हमें क्या शो होता है। चलो पोर्ट बी पे हमें क्या शो होता है जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ। सो हमें FC शो हो रहा है, यानी -4। वी विल सी आस्की कैरेक्टर में कि माइनस जो है वो हमारे पास, और अगर हम सिर्फ F देख लें तो वो शिफ्ट N है, और C देखें हम तो वो फ्रॉम फीड है। अच्छा, हम इसको दूसरी तरह देख सकते हैं कि 4 जो है 4 वो 34 है, और माइनस जो है वो 2D है। तो इनको हम एक तरह से ऐड करके FC के उस पर देखना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हम FC हमारा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यानी -3 पे जब आएगा तो ये FD हो जाएगा, यानी C से D पे आ गया, -3 हो गया, देन -2 FE, देन -1 FF हो गया, देन 0 ऑब्वियसली, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, और उसके बाद दोबारा लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको क्योंकि रिटर्न नहीं किया, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बस यही परमानेंटली यहीं पे रहे। हमने एक बार इस लूप को यूज़ कर लिया, अब दोबारा हम लूप ना यूज़ करें और
हम परमानेंटली वाइल वन के थ्रू इधर ही रहें, ठीक है। सो इसलिए ये दोबारा इसको रीसेट करना पड़ता है। ये थी हमारे पास साइंड कैरेक्टर की एग्जांपल, ठीक है। और अब हम अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग की एग्जांपल देखेंगे। उसके लिए लेट्स स्टार्ट दिस। तो 7.5 हमें कह रहा है कि हम कोई सी प्रोग्राम बनाएं जिसमें सारे बिट्स जो हैं पोर्ट बी की, ठीक है, वो 5000 टाइम्स जो है वो टॉगल हो, यानी 5000 टाइम्स ये लूप चले और उस लूप में वो उसमें एक वैल्यू डालें। यहाँ पे इसने 2 वैल्यूज़ डाली हैं, यानी हम इस लूप को 5000 टाइम्स 2 वैल्यूज़ बेसिकली टॉगल करेंगे। पहले 5 डालेंगे, फिर उसमें ए डालेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे जब पहुँचता है ऑब्वियसली DDRBFF यानी उस पर आउट डायरेक्शन सेट हो गई और लूप स्टार्ट होते ही ये अब टॉगल शुरू कर देगा। अब इसने FF 5 दे दिया, अब ये ए दे देगा, यानी टॉगल साइमल्टेनियसली वो उनकी पिन्स को टॉगल कर रहा है और ये चलेगा अप टू 50,000 टाइम्स। सो हम ऑब्वियसली इसको नहीं करेंगे इस वक्त। 50 टाइम्स उसको टॉगल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और वील प्रेफर कि हम इसको इतना ही देखें कि ये टॉगल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको लूप ये 50,000 टाइम्स दे दिया है तो ये 50,000 टाइम्स चलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि हम इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने अनसाइंड इंट यूज़ किया। अनसाइंड इंट का मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट 65535 ऑलमोस्ट 65,000 तक हम बिट्स इसमें सेंड कर सकते हैं। यानी अगर इसको मैं 60,000 भी कर दूँ बेसिकली, अगर इसमें 60,000 भी कर दूँ इसको मैं हमारे पास इशू कर गया है। इसको मैं करके 60,000 कर दूँ मैं इसको, ठीक है, और इंक्रीमेंट खत्म। तो इसका मैं 60,000 भी करूँगा तो ये 60,000 भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अनसाइंड लॉन्ग, यानी अनसाइंड लॉन्ग के अंदर आप 65535 जो है वो उस तक वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्या है ये? अनसाइंड है। साइंड होगा आगे जाकर, यानी साइंड होगा तो वो इसका हाफ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 34,000 तक ये सेव कर सकेगा। तो हम अब एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग उसमें हम कितना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसको हम 1 लाख टाइम्स ये लूप चलेगा और ये हमें उसकी वैल्यूज़ पोर्ट बी पे शो करवाएगा। यानी टॉगल कर रहा है 55AA। तो ये सिर्फ ये देखने के लिए कि जो अनसाइंड लॉन्ग हमारे पास डेटा टाइप है या अनसाइंड इंट हमारे पास है या अनसाइंड कैरेक्टर है वो किस तरह से कितनी सेव करता है। इसी तरह से साइंड
करेक्टर हो गया, साइंड इंट हो गया, साइंड लॉन्ग हो गया, वो कितने करता है। तो ये सिर्फ हम उस अगर ये यहाँ पे होता लॉन्ग तो सॉरी साइंड, तो हम इसमें 1 लाख नहीं कर सकते थे। हमें इसको अगर इतनी से लूप्स इतने बिट्स सेव करवानी है तो हम इसको हम साइंड नहीं रख सकते। फर्दर हम अब डिले टाइम डिलेज की एग्जांपल शुरू करेंगे और हम उसको साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे। सो द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज 7.8, जिसमें हमने कुछ डिले के साथ टॉगल करवाने हैं पोर्ट बी के या पोर्ट सी के हमने पिंस टॉगल करवाने हैं। चूँकि हमने यहाँ पे कोड में पोर्ट बी यूज़ किया है, सो ऑब्वियसली हमने पोर्ट बी ही यूज़ करेंगे। और चूँकि प्रोटीज में हमारे पास एटमल और प्रोटीज में क्योंकि प्रोसेसर का थोड़ा डिफरेंस है, और ये हमने देखा कि 50 माइक्रोसेकंड्स यहाँ पे प्रोटीज में हमें 1 सेकंड देते हैं। दैट वाज ऑब्जर्वेशन। सो हमें इसको 10 से 50 माइक्रोसेकंड करना पड़ा ताकि एक कंफर्म बात हम कर सकें उस लिहाज से। सो अगेन क्या किया हमने, सिर्फ इसको डायरेक्शन दी आउटपुट पोर्ट बी की पिंस को, और उसको हमने इसकी हेक्स फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी। सो पोर्ट बी के साथ अब ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये 1 सेकंड के डिले पर हमने इसको चलाया है। यू कैन सी कि हमने डिले को यूज़ करते हुए, बेसिकली डिले फंक्शन को यूज़ करते हुए, जो कि हमने .h फाइल इंक्लूड किए, और .h फाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी होती है। इसको यूज़ करते हुए हमने एक प्रोग्राम पोर्ट बी को हमने यूटिलाइज़ किया है उसी प्लेस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो हम जाएंगे आईओ प्रोग्रामिंग, यानी हम इनपुट आउटपुट पिंस को और पोर्ट्स को हम देखेंगे। उसमें हम ऑब्वियसली डेटा टाइप्स भी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन चूँकि हमने एक बार उसको देख लिया तो उस पर हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। हम ज़्यादा फोकस करेंगे पिंस पर, उनकी पोर्ट्स पर। यानी 7.9 अगर हम देखें तो LEDs जिस तरह यहाँ पे कनेक्टेड हैं पोर्ट बी के पिंस के साथ, तो हम कहेंगे कि उस पर आप जो है ना काउंट शो करें 0 से FFH की तरफ, यानी जो कि होगा 11111111। तो 8 बिट की ये जो है ना हम शो करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास 8 पिन्स हैं पोर्ट बी की। तो हर एक पे पहले वो सारी ज़ीरो होंगी, फिर वो सारे से लेकर आखिर में 1, फिर 1 0, फिर 1 1। तो ये शो कराने के लिए हमें बेसिकली पहले इसको एटमल में बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के बाद हम उसको प्रोटीज में सिमुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 7.9 है। उसमें नहीं 7.9 7.9 जबकि यहाँ पे 7.9 अगर हम देखें तो एग्जैक्ट वही है। ओके वही है। तो हमें सिर्फ इसको करना है, बिल्ड करना है, जो कि हमारे ऑब्वियसली एक ऑब्वियस स्टेप्स होते हैं। ओके ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है। हम इसमें एक्स फाइल डालेंगे। अब ये क्या कर रहा है, 0 0 1, सारे ज़ीरोज़ आखिर में 1, उसके बाद डिले आया, ठीक है।
डिले 500 का है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट कोई 5 सेकेंड का, और लेस देन 5 सेकेंड। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको अगेन 1 सेकेंड पे लेके जाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड पे ले जाकर इसको 1 सेकेंड पे ले जाकर इसको हम दोबारा यहाँ पे लोड करवाते हैं, ताकि हमें जल्दी से सिमुलेट होता हुआ नज़र आए। 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और ये चलता चलता आखिर में जाकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है FFH की तरफ जाएगा। तब तक हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट बी, ठीक है। हम इनपुट यूज़ करेंगे बेसिकली पोर्ट बी पे, और हम पोर्ट सी यूज़ करेंगे उसको आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर DDRB उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं इनपुट, और सी को हम डायरेक्शन दे रहे हैं आउटपुट। और हमारा मकसद क्या है कि हम पिन बी का जो भी उसमें सेव है वो हम पोर्ट सी में, पोर्ट बी में हमने जो भी इनपुट लिए वो पोर्ट सी में हम आउटपुट करवा दें, ठीक है। ये चलता रहेगा, दैट्स नॉट एन इशू। हम तब तक करते हैं इसको बिल्ड किया। ऑब्वियसली ये सारे हाई, एक स्टेज आएगा कि सारे हाई हो जाएंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट कोड ऑब्वियसली सिमुलेट करना है, उस पर हम जाएंगे। और हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि पोर्ट बी जो है, यानी पोर्ट बी जो है, हम एक काम कर सकते हैं कि हम चूँकि हम पोर्ट बी को LEDs लगाएंगे हम यहाँ पे, जहाँ पर पोर्ट बी है पिन, वहाँ पे हम पोर्ट सी करते हैं, और जहाँ सी है वहाँ बी करते हैं। यानी यहाँ पे हम आउटपुट इनपुट जो है वो सी से लेते हैं, और आउटपुट जो है बी से ले लेते हैं। तो हमारे लिए प्रोटीज में चेंजेस करना आसान रहेगा। सी में हमने इनपुट लिया और पोर्ट बी पे आउटपुट कर दिया। तो अब सी जो है यहाँ हम टॉगल यूज़ करेंगे, अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 0 से 5 तक पिन्स जो हैं वो बी की यूज़ कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, पिन सी की चूँकि हम सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं C0 से C5 तक, ठीक है। तो हम उनको इतना ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ना। अब जो भी इनपुट मैं सी से लूँगा वो पोर्ट बी पे वो शो होता रहेगा, और वही हमारी कोड की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारे कोड में उल्टा था, पोर्ट बी से लेना और पोर्ट सी पे शो कराना। हमने अपनी आसानी के लिए पोर्ट बी पे आउटपुट शो कराया, जो जो पोर्ट सी पे इनपुट मिल रहा है उसको, ठीक है। लास्ट वाला हम या सेकेंड लास्ट कर दें, लास्ट कर दें, ठीक है। जो जो इनपुट आपको वो दे रहा है सी, मैं सी पोर्ट सी को दे रहा हूँ, वही इनपुट वो पोर्ट बी में शो कराएगा। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टास्क। हमारे पास 11th एग्जांपल है कि
पोर्ट सी को पोर्ट सी से कुछ ऐसे डेटा लेना है, इनपुट लेना है जो कि हम पोर्ट बी या पोर्ट डी में सेंड कर सकें। और कंडीशन ये है कि अगर वो 100 से लेस है, यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा है, यानी इफ़ और एल्स अगर तो वो डेटा जो हमने पोर्ट सी पे भेजा है वो लेस देन 100 है तो वो उसको सेव कर दें पोर्ट बी में और उसको डिस्प्ले कर दें पोर्ट बी पे। अगर वो 100 और मोर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है, तो वो पोर्ट डी पे जाएगा। दैट्स द सिंपल कोड। ठीक है। हम जब उसको एटमी पे लेके जाते हैं तो हम पहले तो स्टेप इनटू करते हैं जब हमारे पास DDRB जो है वो एज आउटपुट, DDRB जो है वो भी एज आउटपुट डिक्लेयर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग गया और यहाँ से और D दोनों हमारे पास आउटपुट डिक्लेयर हो गया। DDRC ऑब्वियसली इनपुट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट सी पे बेसिकली हम इसको इनपुट देंगे। सॉरी, जब हम यहाँ आएंगे पोर्ट सी पे, यहाँ अगर हम उसको इनपुट देते हैं 1 0 0 1 1 1, या अगर हम उसको ये कर दें पोर्ट सी की वो पिन हमारे पास नहीं है, हमने उसको 7F कर दिया। अब जब ये ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो अब जब ये नीचे जाएगा तो ये किस में सेव कराएगा? पोर्ट बी में। ठीक है, पोर्ट बी में इसने सेव करा दिया। पोर्ट डी में, सॉरी, ग्रेटर देन 100 है ना, ग्रेटर देन 100 हमने दिया 7F, तो वो उसने इसमें सेव करा दिया पोर्ट सी में। सेम अगर हम काम करें यहाँ पर आकर पिन सी में आकर और हम कहें कि 111 हम इसको दे दें, ठीक है, 7 दे दिया हमने। अब ये इसको पोर्ट डी में नहीं बल्कि पोर्ट बी में सेव कराना चाहिए। देखिएगा अब ये पोर्ट बी में सेव कराएगा। ये क्यों यहाँ पे नहीं सेव हुआ, पोर्ट डी में नहीं सेव हुआ, पोर्ट बी में सेव हुआ? क्योंकि हमने कंडीशन डाली थी कि अगर पोर्ट सी पे अगर लेस देन 100 होगा तो वो भेजेगा पोर्ट बी पे, अगर वो ग्रेटर देन 100 होगा तो भेजेगा पोर्ट डी पे। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने स्टेटमेंट्स प्रूफ कर दिए, जो दो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो अब बिट साइज़ पे बल्कि लॉजिक ऑपरेशंस पे आ जाएगा। अब लॉजिक ऑपरेशन सी में किस तरह से हम देखते हैं, रन द प्रोग्राम सिमुलेटर में चलो। अब हम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एंड और एंड ज़ोर या नॉट, तो ये 4 ऑपरेशंस जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सी में कैसे हम देखते हैं और उसका सिंटैक्स कैसे होता है वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि जो हमारी एंड और ज़ोर की ऑपरेशंस उनको हम डिफरेंट पोर्ट्स पे जो है ना डिस्प्ले करवाते जाएँ, जैसे कि 035 एंड 0F जो है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने यहाँ पर इस टेबल से कर ली है। अब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली जो है वो एक जो है ना वो एंड होगा और हमें सिंपली जो है ना कोड रन करते हुए ये देखना है कि ऑब्वियसली पोर्ट बी, सी और डी को हम आउटपुट शो करा गया। इसके बाद इस स्टेप पर जब हम आते हैं
तो हमें अब 35 और 0F का जो कि हेक्स में उनका एंड ऑपरेशन आउटपुट में नज़र आएगा। यानी हमें पोर्ट बी के ऊपर हमें 05 शो होता हुआ नज़र आएगा, जो कि बेसिकली एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट है। 00110101 और टेट्रा 1 के बीच में एंड ऑपरेशन करते हुए, तो यानी हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो पेंटा 0101 हमारे पास आंसर आया। अच्छा, नेक्स्ट जब हम और ऑब्वियसली आपको लॉजिकल ऑपरेशंस याद हैं कि एंड ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है कि जब दो ज़ीरोज़ होते हैं या कोई एक भी ज़ीरो होगा तो हमारे पास आंसर में ज़ीरो आएगा। ठीक है, कोई एक भी ज़ीरो होगा, यानी ये चारों ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये पहले चार तो ज़ीरो ही हैं। उसके बाद उस साइड से जो लोअर निबल है उसका सेकंड भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया। और यहाँ से लोअर निबल में ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो है, मतलब ये 101 जो कि बेसिकली अल्टीमेटली हमारे पास 5 ही आता है, और वही 5 हमारे पास डिस्प्ले हो गया बी में, पोर्ट बी पे। अब इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हमारे पास पेंटा 0100 यानी 4 और 68 के बीच में हमारे पास जब एंड आता है, सॉरी और ऑपरेशन आता है, तो हमारे पास आंसर में 6C आता है। और 6C बेसिकली 6C हमारे पास क्या होता है, 6C हमारे पास होता है 01101100, यानी और ऑपरेशन क्या होता है कि कोई एक भी 1 होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी हाई आएगा। और कोई एक भी जो है वो दोनों जब ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये दो जहाँ जहाँ वन्स हैं वहाँ तो हर हाल में 1 आएगा ही, जहाँ पर दोनों ज़ीरो हैं हमारे पास आंसर में सिर्फ वही ज़ीरो आता है। ठीक है, नाउ हमारे पास यहाँ पे 6C हो गया। इसके बाद डी पोर्ट को देखते हैं, हमारे पास डी पोर्ट पे क्या डिस्प्ले हुआ है। डी पोर्ट में हमारे पास 2C डिस्प्ले हुआ है। अब जो ज़ोर ऑपरेशन है, ठीक है, ज़ोर ऑपरेशन में एक्सक्लूसिव और जिसे कहते हैं, ज़ोर ऑपरेशन में ये होता है कि अगर दोनों 1 है या दोनों 0 हैं, यानी अगर दोनों सिमिलर हैं तो वो 0 होगा, वो लो देगा। अगर कोई एक दोनों में से एक डिफरेंट है तो वो हमारे पास हाई देगा। तो चूँकि ये कॉमन है, ठीक है, उसके बाद ये कॉमन है, आखिरी दो कॉमन है, ठीक है, तो उसी लिहाज से हमारे पास 2C हम यहाँ से देख लेंगे चार्ट में से। तो 2C हमारे पास होता है 001000। ज़ोर ऑपरेशन हमने पहले देखा कि जब हमारे पास दोनों कॉमन है तो वो लो, और अगर कोई एक डिफरेंट है तो वो हाई। तो इसी तरह 2C हमने देख लिया, ठीक है, कि वो पहला जो है वो सेकंड जो है वो कॉमन है तो उसने हाई दे दिया, आगे जो है वो डिफरेंट है तो उसने लो दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये ऑपरेशन जो, अच्छा, पोर्ट बी पे दोबारा जो है वो नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। लेट्स डू इट अगेन। हम इस के ऊपर आकर देखते हैं, यहाँ पर आकर ये ब्रेक होता है, तो खैर इसको हम रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है सॉरी सेवन 13 जो है वो क्या है कि
4 बिट्स ऑफ पोर्ट बी पे हमने सिर्फ टॉगल करना है और बाकी को हम डिस्टर्ब नहीं करना। वो ये एक सिंपल सा कोड है, उसको हम उसमें हम जाननी चाहिए। और एंड हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अगेन एंड आ गया यहाँ पे, दोबारा हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड और अगेन एंड और, ठीक है। जहाँ पर हम कोई डिफरेंट चीज़ देखेंगे, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ हो रहा है। अगेन कह रहे हैं कि डेटा पिन्स ऑफ एलसीडी आर कनेक्टेड टू पोर्ट बी, इंफॉर्मेशन इज लाइस्ड इनटू द एलसीडी व्हेनेवर एनेबल पिन goes from hide low. The enable pin connected to port 5 of pin 5 of port C. Write a C program to send the earth is but one country. The earth is not but one country to LCD. ठीक है, तो हम उसको एक अनसाइंड कैरेक्टर में सेव करेंगे और array की शक्ल में उसको हम कह सकते हैं। लॉन्ग को भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। पोर्ट बी हम उसको आउटपुट दे रहे हैं और पोर्ट सी की हम 6th जो है वो पिन 6th पिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज एनेबल, ठीक है। अच्छा, अब जब वो मैसेज डिस्प्ले होगा तो वो पोर्ट सी में एक बार वो उसको हाई और एक बार लो, यानी हाई उसको इसलिए करेगा कि एक बार वो मैसेज उस पर चला जाए और लो ताकि वो नॉर्मल पे आ जाए। तो ये कोड हम अब चलाएंगे एटमल पे। अच्छा, जैसे रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमने पोर्ट सी में पोर्ट बी में ये मैसेज आउट करवाना है, द अर्थ इज़ बट वन कंट्री, ठीक है। क्योंकि इसने अनसाइंड कैरेक्टर यूज़ किया है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है इस अरे में हमने सेव कराया THE फिर स्पेस फिर E। तो ये टोटल क्या है, ये 28 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने इसको एज आउटपुट सेट करा दिया। इनेबल के लिए हमने 6th जो इसकी सी की जो 6th पिन है, ठीक है, वो हमने सेट की। अब यहाँ देखते हैं कि जब ये इसने सेट कर दिया, अब जब ये पोर्ट बी पे डिस्प्ले के लिए आएगा, यानी 0th पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है T, तो 54। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि 54 पे जो है ना वो 54 पे जो है वो T होगा, ठीक है। उसे बेसिकली मुझे ख़ास देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो यहाँ पे है भी नहीं है। आस्की में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल T होगा, कैपिटल T वो 54 होगा, ठीक है। 54 आपने आउट करा दिया पोर्ट बी पे, यानी उसने T डिस्प्ले करा दिया। और ऑब्वियसली LCD होगा तो वो हेक्स से जो उसका कैरेक्टर है वो उसमें आस्की में कन्वर्ट कर देगा। अब जब दोबारा हम आएंगे, अब यहाँ पे जब ये आया पोर्ट सी में, तो उसने एक बार उसको सेट किया हाई, उस पिन को 6 पिन को, और दोबारा उसने सेट कर दिया 0। अब वजह क्या है कि इनेबल को जब हम हाई करते हैं तो उसने ये मैसेज स्टोर कर लिया। अब जब 0 करते हैं तो दोबारा वो स्टोर करने के लिए तैयार होगा। अब जब दोबारा ये लूप चलेगा 1 के लिए, तो अब ये स्टोर करेगा 68 क्या होना चाहिए, H, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से स्मॉल h 68, तो हमें बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। E 65 हो गया, ठीक है, 65E, ठीक है। उसके बाद स्पेस हो गया, आगे 20 आना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब हम इससे काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये था कोड नंबर 16, 7th का 16। अच्छा, नाउ 16 हमने देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे।
नेक्स्ट जो हमारा 17 कोड है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम पोर्ट बी के पिन 0 और 1 को, यानी पोर्ट बी के 0 और 1 को हम यूज़ करें, ठीक है। और हम पोर्ट डी में उसका कॉरस्पॉन्डिंग आस्की कोड जो है वो डिस्प्ले करें, ठीक है। इस कोड में और कुछ भी नहीं है, हमने एक अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ की, ठीक है। इसको हमने इनपुट रखा, पोर्ट बी को डायरेक्ट किया और पोर्ट डी को हमने आउटपुट डायरेक्ट किया। अच्छा, अब क्योंकि पिन बी जो है वो सिर्फ पहली दो जो हैं पिन्स जो हैं वो उसको देखेगा और बाकियों को नहीं देखेगा, और हमारे पास उसमें 4 केसेस ही आती हैं, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अच्छा, केस 0 क्या है कि पोर्ट डी पे हमारा 0 डिस्प्ले हो, ठीक है। और केस 2, केस 1, केस 2, केस 3। अब ये किस तरह होगा, क्योंकि 0 जो है वो हम 0 कहते हैं उसे, तो हमारे पास पोर्ट डी में हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, 30, इसी तरह 31, 32, 33। अब हम देखते हैं कि पोर्ट पिन बी जो है वो कहाँ पे इनपुट लेगा, पिन बी यहाँ पे इनपुट लेगा, यानी हम जब नीचे आते हैं यहाँ, अब पिन बी पे मैं सेट करता हूँ 0 0, ठीक है। तो पोर्ट डी में ये किस पे जाएगा, केस नंबर 0 पे, ठीक है। 30 इसने शो करा दिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ पिन सॉरी मैं दोबारा करना पड़ेगा। अब मैं जानता हूँ पिन बी में और मैं करता हूँ 0 1, ठीक है। 0 1 मैंने सेट कर दिया। अब ये पोर्ट डी में जाएगा और ये क्या शो करा देगा, केस 2। ऐसे केस 2 शो कराना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट पिन बी पे 0 1 शो कराया, ठीक है। सॉरी, पिन बी पे मैंने 0 1 सेव करा दिया, 0 1 सेव हो। अब पोर्ट डी में ये क्या करेगा, 31 सेव करा दिया इसने, ठीक है। 31 सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पिन बी को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 0, ठीक है। तो पोर्ट डी में क्या जाएगा, केस 2 32, ठीक है। इसी तरह मैं जाता हूँ और इसको मैं 1 1 कर देता हूँ, तो अब ये पोर्ट डी में जाकर 33 हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा एक कोड है जो हम बी के पहले दो पिन से हमने इनपुट लिया, 0 0 1 1 0 1 1, और करस्पॉन्डिंग उसका पोर्ट डी जो है वो आउटपुट दे रहा है आस्की में, सॉरी यस आस्की में, उसका 30 31 32 33। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 18 में आ रहे हैं, लेकिन हम 7 21 को साथ ही मिलाकर देखना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उसको भी हम देख लें। तो ओरिजिनली 7.18 क्या था, 7.18 ये था कि आप उसकी 6th पिन को देखें और उसको यूज़ करते हुए एक बार उस पोर्ट बी को एज इनपुट यूज़ करें और एक बार उसको एज आउटपुट यूज़ करें, दैट्स इट। अब हम उसको बिट वाइज ऑपरेटर्स के थ्रू देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी,
अब क्या होगा कि ये सेट हो गया एज 6 पिन के साथ बिट वाइज, सॉरी बी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक बार ये क्या सेट हो गया एज आउटपुट और एक बार एज इनपुट। वो एज इनपुट पहले ही हो गया था सेट, बट हमने उसको इग्नोर किया। यहाँ एज इनपुट, अच्छा सॉरी, मैंने इसको एक चीज़ इग्नोर की कि पिन बी को मैं यहाँ पे आके पिन बी को मैं अगर सेट कर दूँ 4th बिट 5th बिट, अगर मैं सेट कर दूँ हाई, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा एल्स में और उसको एज हाई एज आउटपुट सेट कर देगा। और अगर मैं उसको लो कर दूँ तो वो इसको इनपुट कर देगा। सो दैट इज़ एट अबाउट 721। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास 23 में आ जाएगी आई गेस। मॉनिटर 7 बिट ऑफ पोर्ट बी इफ इट इज़ 1, ठीक है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये यूज़ हो रहा है 723 में, ठीक है। अच्छा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो कह रहे हैं कि 7th बिट जो है इसकी देखें आप, अगर वो 1 है तो बिट 4 जो है उसकी एज इनपुट करें और वरना तो वो पिन 4 जो है वो एज आउटपुट करें। तो वो पिन जो है पोर्ट बी की ये 0 1 2 3 4 5 6 7 या फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 ये बिट, ठीक है। हम इसको देखेंगे और हम यहाँ पर आकर 7th बिट को हाई कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जो है पिन बी में जो भी आपने इनपुट किया है उसको शिफ्ट करें 7th पे, ठीक है। तो अगर तो वो जो है 1 है तो वो इनपुट के तौर पर ले लें उसको, ठीक है। उसने उसको आउटपुट के तौर पर लिए क्योंकि मैंने उसको 7th बिट जो है वो हाई कर दिया, 1 को 7 पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको लो कर देता हूँ तो हो जाएगा इसको मैंने हाई किया। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूँ हाई तो वो इसमें चला जाएगा, सॉरी। तो 7 बिट इसकी ये है, अगर मैं इसको हाई कर दूँ तो वो उसको शिफ्ट कर देगा, वो एज एन इनपुट मतलब ये 0 हो गया, 4th बिट उसकी 0 हो गई है। अब ये एज एन इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लो कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एज एन आउटपुट ट्रीट करेगा, ठीक है। एज एन आउटपुट आप ट्रीट करता है बिट 4 को, ठीक है, बिट 4 को। सो दैट वाज द एग्जांपल कि आप क्या करें, आप 7th बिट जो है बिट 7 उसको आप हाई करें, ठीक है। तो पोर्ट बी जो है वो पूरी की उसकी 4th बिट जो है वो इनपुट हो जाएगी। अगर आप उसको ज़ीरो करते हैं, पिन को, तो वो एज आउटपुट ट्रीट करेगा उसको। सो नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि उसकी बिट 5 को आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू पिन पोर्ट बी पिन 1 एंड एन एलईडी इज कनेक्टेड टू पोर्ट सी पिन 7। अच्छा, राइट प्रोग्राम टू मॉनिटर द डोर सेंसर व्हेन इट ओपन्स, टर्न द एलईडी ऑन, ठीक है।
हमारे पास दो वेरिएबल डिफाइन होंगे, एक एलईडी और एक सेंसर, ठीक है। उनको हमने पिन्स दे दिए 7 1। अब जब हमारे पास पिन 1, पोर्ट बी की पिन 1 जो है वो हाई होगी, ठीक है, और इन यहाँ पर अगर वो हाई होगी, ठीक है, तो एलईडी को वो ऑन कर दे, वरना तो वो एलईडी को ऑफ रखे। ये हमारी एलईडी जो है वो कनेक्टेड है पिन 7 के साथ पोर्ट सी के। अच्छा, अब हम इसमें चेंजेस करते हैं कोड लाने के लिए। अच्छा, तो लेट्स कम टू DDR-B, यानी पोर्ट बी जो है वो सेंसर के लिए होगी और पोर्ट सी जो है वो किस लिए होगी, डोर के लिए, पोर्ट सी डोर के लिए होगी। अच्छा, अब अगर वो उसकी जो पिन 1 है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 जो 1 है, इसको मैंने हाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि सॉरी, ये पोर्ट सी है, पोर्ट बी को अगर इसकी पिन 1 को मैंने हाई कर दिया तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पोर्ट सी जो है वो उसकी वो वाली पिन हाई हो जाएगी। अच्छा, मे बी मैंने गलत पिन कर दी हो। आई एक्सपेक्ट कि पोर्ट बी और पोर्ट सी की, पोर्ट सी जो है वो कह रहे हैं कि व्हेन इट ओपन्स टर्न ऑन द एलईडी, ठीक है। तो अगर तो फर्स्ट पे वो आता है तो एलईडी जो है वो ऑन कर दो, बिट 1, ठीक है, पिन 1 जो है वो हाई हो गई है। इसका मतलब ये है कि पोर्ट सी में हाई होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे हाई शो नहीं कर रहा। DDR-C, आई बिलीव कि पोर्ट सी को हमने DDR-C दे दिया है, बट इसको हाई होना चाहिए था, सॉरी। अब पोर्ट बी को हमने हाई दिया, सॉरी। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि बिट 1 को जो है ना, पिन 1 को जो है हम वो हाई करेंगे पोर्ट बी की, तो पोर्ट सी की 7th बिट जो है वो, सॉरी मिनट, इसको भी हम हाई कर देते हैं। 7th बिट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 7th बिट हमारी अगर बिट 1 को हम हाई करते हैं पोर्ट बी की नहीं, पोर्ट सी की, हमारे पास पोर्ट सी की 7th पिन हाई होनी चाहिए। इसको हम इधर से ही हाई करते हैं, इधर से ही हम उसको हाई करते हैं, तो वो 2 के वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट एलईडी पिन ऑफ द पोर्ट सी, ठीक है, तो सेट हो गई, वो हाई शो होना चाहिए, ठीक है। तो चूँकि ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे इधर आ रहा है, इसीलिए इससे हम शो कर देते हैं कि ये हाई शो हो रहा है। इसी को हम प्रोटीएस पे भी चेक कर सकते हैं।
अच्छा, इशू हमारे पास ये आ रहा था कि हमारे पास 7th बिट जो है सी की वो अवेलेबल नहीं होती, दो कि हमारे पास 6 भी अवेलेबल नहीं होती, वो सेट की होती है, रीसेट की होती है। हम पोर्ट डी यूज़ करेंगे, ठीक है, पोर्ट डी यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि हम अगर बिट 1 जो है वो हाई रखते हैं तो हमारे पास यानी डोर ओपन है, ठीक है, तो हमारे पास एलईडी ऑन हो जाती है, ठीक है। इसी को हम प्रोटीज में भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेंसर जो है वो लो दे रहा है तो एलईडी हमारे पास लो है, और अगर सेंसर जो है वो हाई होता है तो डोर ओपन है, तो हमारे पास एलईडी भी ओपन हो जाएगी। दैट इज़ इट। ये कोड था नेक्स्ट।